Good afternoon, ma'am. Yes. Yes. Today we will cover two practicals. The first is string functions. Okay. The first is string function, and the second is for each loop. Okay. Today we will do the two practicals regarding first is for each loop and string functions. Okay, in the last lecture we had seen the jagged array practicals. Okay, jagged array practicals we have performed in the last lecture. Now today we will do these two practicals, and please all the syntax of programs please write in your notebook now. Okay, when I will do the program, I will perform the program, so please write in your notebook. Okay, notebook में लिखो so that the syntax जो है वो आपको याद हो जाएगा. ओके, द सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा, देन यू कैन डू दी प्रोग्राम्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फॉर ईच लूप. ओके, फॉर ईच लूप पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. फॉर ईच लूप. ओके, वेट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. Okay, for each loop we will start. Okay, what is the use of for each loop? Chalo, what is the use of for each loop? What is the use of for each loop? कौन बताएगा मुझे? ऑलरेडी वी हैड कवर दिस कंसेप्ट इन द थियरी. ओके, हम लोगों ने थियरी में एक कंसेप्ट कवर किया, बट प्रोग्राम एक बाकी था, दैट नहीं मिली. ओके, बताओ मुझे व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर ईच लूप. क्या है फॉर ईच लूप? व्हाई वी आर यूजिंग द फॉर ईच लूप? व्हाई वी आर यूजिंग द फॉर ईच लूप? फटाक से बताओ. चलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, students, we have to give answers. ये प्रैक्टिकल भी मैं रन करूंगी, सब मुझे ही करना है. What is the use of for each loop? For each loop use. For each loop का यूज क्या है? बोलो चलो. May I audible? Yes. Now tell me, what is the use of for each loop? For each loop का क्या यूज है, बताओ मुझे. नहीं याद है तो बता दो मैम. नो आइडिया, याद नहीं है, भूल गए हम लोग, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी. एनीवन नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फॉर ईच लूप, व्हाट इज द फॉर ईच लूप? फॉर ईच लूप पता है किसी को? सबको पता है, आई नो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस. पता है पर भूल गया क्या होता है. हाँ नहीं, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर ईच लूप? आई एम आस्किंग ओनली फॉर व्हाट, क्या पता है, व्हाट यू नो अबाउट द फॉर. आप क्या, आपको समझ में आया फॉर ईच लूप के बारे में? क्या यूज किया हमने फॉर ईच लूप का? यस, शाहजाद है क्या लेक्चर में? शोएब, शाहजाद, जेरोल्ड, सूर्या. ओके, चलो, नहीं नहीं याद है किसी को, तो यूजिंग द फॉर ईच लूप. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? कौन है? जेरोल्ड. नहीं मैम, नहीं, ठीक है, याद नहीं मैम अभी. नहीं याद है. ओके, कोई बात नहीं. चलो, फॉर ईच लूप. हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा मैम है? execute the block of codes. हाँ, शाहजाद. Execute the block of codes. ओके, हाँ ठीक है. यस, हाँ, देयर आर 3. हाँ बोलो शाहजाद. मैम लूप की हेल्प से मैं स्टेटमेंट को बार-बार एग्जीक्यूट कर सकती हूँ. आपका आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है बेटा, अगेन रिपीट करो. मैम लूप की हेल्प से मैम स्टेटमेंट को बार-बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Okay, 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 okay. We had seen 3 types of loop in the C# language. While, do while loop,
for loop and for each loop. While do while loop and for loop already you know. Okay, you have done a lot of programs with the for loop and while and do while loop in the previous subjects. Okay, previous semester subjects. Now this is a new loop. For each loop is a new loop. The for each loop is used. For each loop is used to access the array elements. ठीक है, array elements जो है उसको specially access करने के लिए this loop is designed. Okay, to access the array elements. ठीक है, array element को access करने के लिए for each loop is used. Okay, looping is a programming language. It is a way to execute statement or set of statement multiple number of times that we know. The resulting condition will be ठीक है. The for each loop is used to iterate over the elements of the collection. Okay, मतलब array. Collection of the variable is known as the array. The collection may be an array or a list. Okay, list elements also we can access using the for each loop. हम लोग list element को भी access कर सकते हैं. What is list? We will see in the next unit. ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे. From array you know. Okay, तो array elements को access करने के लिए we are using the for each loop. Okay, for each loop. It is necessary to enclose the statement of for each loop in the curly brackets. Okay, instead of declaring and initializing a loop counter variable, you declare a variable that is the same type as the base type of the array. Okay, followed by the colon, which is then followed by the array name. Syntax. Okay, वो syntax बता रहे हैं. The syntax how to declare the for each loop. In the loop body, you can use the loop variables you create rather than using index array elements. Okay, for example, say this is the syntax of for each loop. Okay, तो specially for loop for each loop is designed to access the array elements को access करने के लिए ये loop जो है that is designed. Okay, what is the syntax for each? Okay, then data type, variable name. Okay, कोई एक variable declare करो, उसका data type जो data type variable को दोगे that should be same with the array जो आपने पहले define करके रखा है. जो array elements को you want to access the array elements जो declare किया अपने array elements उसका data type and this variable you will define both जो है variables उसका data type should be same. In is a keyword. Okay, so you have to write in as it is and collection variables and collection array variables. मतलब कौन से variables group of variables you want to access. So here you will write the array name. यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? Array name लिखोगे. Okay, तो for each data type लिखना है. Variable name. Here variable name any name you can give here. Okay, ऐसे कोई restriction नहीं है. हाँ, but data type जो है वो क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. किसके साथ same होना चाहिए? जो आपने array declare किया है, जो array को you want to access. Okay, जो array elements को you want to access, जो ऊपर आपने declare किया उसका and ये for each loop में जो variable declare करा है both the data type should be same. In and collection variable आपको लिखना है here array name and statements to be executed. आपको क्या जो भी statement execute करना है वो आपको लिखना है. See one program here I am written. ठीक है, इसको हम लोग run करेंगे then you will get the idea. Okay. यार नीचे करो स्लाइड में. Yes, क्या हो गया? सिंटेक्स दिख रहा है. Size increase करो. सिंटेक्स नेम. Syntax बताओ. Okay. Okay, yes, what is the syntax for each? Okay, for each जैसे for loop लिखते हैं वैसे you have to write for each. Open the bracket, data type, then space, then variable name, in, then array name. Okay, then array name. जो array का elements you want to access वो array का name here you have to write. Open the bracket, जो भी statements आपको उसके वो array के साथ आपको जो भी करवाना है, जो processing जो भी करवाना है, print करवाना है, here you will write the statements and close the bracket. This is a syntax for the for each loop. Okay, for each loop. For loop का जो syntax है that is a different from for each loop. Okay, mix मत करना for and for each loop. We will see the difference. What is the difference between for and for each loop का difference क्या है that है next page पे है. What is the difference between for and for each loop? वो भी हम लोग cover करेंगे. पहले याद रखो what is a for each loop. Okay, so this is a program, small program है. यहाँ पे क्या किया यहाँ पे creating the array. ठीक है, यहाँ पे array they are creating the array. Yeah. एक लाइन में ले लेते so you will understand. इतना ही रहेगा. ठीक है. Okay, this
is a main method. Okay, ये main method क्या है पता है, ये just उन्होंने लिखा है print है. Okay, now main the array is created here. Integer, how to create array in C# language? Now you know the syntax. Syntax आपको पता है. First of all, write the data type, empty brackets, square brackets, then array name. Okay, this is the array name. ये क्या है? Array name equals to new integer and initialization क्या है? 1 2 3 4 5 6 array. 7 elements are assigned to array variables. Okay, तो create यहाँ पे array create किया है. Now you want to print these array elements. ठीक है, आपको ये array elements को print करना है. Okay, you want to print this array elements, so you can print this element using for loop से भी आप कर सकते हो, but for each loop जो है that is specially डिजाइन किया हुआ array के लिए. तो you can also use the for each loop. तो अगर आपको for each loop से उसको assign print करवाना है, if you want to print these elements, array elements को for each loop से print करवाना है, तो what is the syntax of for each loop? For each, okay, for each लिखो, then open the bracket, then next what is next क्या था? Data type. for each लिखा data type. Okay, तो data type should be same. Okay, यहाँ पे integer है, यहाँ पे array कौन से type का है? Integer. So here you have to, you must write integer. You must write integer here. तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करे उसका एंड एरे जो ऊपर डिक्लेयर किया दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. नहीं होगा तो एरर आएगा. ठीक है. आइटम्स, दिस इज अ वेरिएबल. ये वेरिएबल है. यू कैन राइट, यू कैन डिक्लेयर एनी वेरिएबल. इन इज अ कीवर्ड. वेरिएबल नेम इन इज अ कीवर्ड एंड कलेक्शन वेरिएबल्स मतलब एरे नेम जो आपको एक्सेस करना है, जिसके एलिमेंट्स यू वांट टू प्रिंट. यहाँ पे नेम लिखो, तो हियर हमको कौन सा एरे का नेम, कौन सा एरे में से डिक्लेयर करना है? ये एरे में से. तो हियर वी आर डिक्लेयरिंग द ए एरे. तो यहाँ पे आपको लिखना है ए एरे, जो नेम डिक्लेयर किया है एरे को, दैट यू शुड राइट हियर. ठीक है. नाउ क्या करना है? उसको एलिमेंट्स प्रिंट करवाना है. तो कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम्स, क्या लिखा? आइटम्स. पहले हम लोग क्या करते थे? कंसोल डॉट राइट लाइन a of I. Here हम लोग for loop डिक्लेयर करते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? I equals to 0, I less than array dot line, I plus plus console dot write line array of I. ऐसे हम लोग लिखते हैं if we are using the for loop. बट हम लोग यहाँ पे for each loop यूज करें और printing the array elements को print करने के लिए for each loop यूज करें, तो you have to write here variable name instead of index of array. ठीक है. index of array की जगह पे you will write the here क्या लिखोगे आप यहाँ पे? वेरिएबल नेम. तो क्या हो जाएगा? जो एरे एलिमेंट्स हमने ऊपर डिक्लेयर किया है वो प्रिंट हो जाएगा. क्लियर? फॉर ईच लूप क्लियर? फॉर ईच लूप क्लियर? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. नाउ ये सिंटैक्स याद हो गया, नोटबुक में सब लोगों ने लिखा. नाउ आई विल टाइप, यू विल टेल मी, आई विल टाइप इन दी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में. तो ये प्रोग्राम फॉर ईच लूप का प्रोग्राम हम लोग करेंगे. याद हो गया सबको सिंटैक्स, प्रोग्राम्स? ओके, चलो. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे इन दी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में कंसोल एप्लीकेशन में. कौन सा एप्लीकेशन में? कंसोल एप्लीकेशन. दिस इज योर स्टार्टअप पेज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 प्रोफेशनल. ठीक है. आई हैव इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम. नाउ आई वांट टू क्रिएट कंसोल एप्लीकेशन. गो टू द फाइल मेनू, क्लिक ऑन द न्यू, देन क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट. अभी हमको वेबसाइट्स नहीं बनाना, जस्ट हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते. तो सिलेक्ट द प्रोजेक्ट. Okay, now we know कि .NET supports multiple languages. Okay, here by default इतना support करा है, आप उसको online भी select कर सकते हो languages. ठीक है. As our according to our syllabus requirement हमको C# language use करना है, तो I am choosing the C# language choose किया. Okay, different we also know कि we can create different types of applications. हम लोग create कर सकते हैं Windows ये सारे application we can create, web वगैरह. बट नाउ अभी हम लोग कौन सा ले रहे? कंसोल एप्लीकेशन. ठीक है. कंसोल एप्लीकेशन हम लोग करेंगे. तो फिर कौन सी कंसोल एप्लीकेशन? देखो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है? C# लैंग्वेज एंड कमांड लाइन एप्लीकेशन मतलब कंसोल एप्लीकेशन. गिव द नेम हियर. ठीक है. यहाँ पे आपको जो नेम देना है, गिव द नेम. तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ फॉर ईच लूप प्रोग्राम. फॉर ईच लूप. शॉर्ट में दे रहे प्रोग्राम देके उसको लोकेशन, उसका लोकेशन ये है. ठीक है. ओके.
it will take few minutes. Okay, open होने में सेकंड, उसको डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम रैम कितना है उस पे ये डिपेंड करेगा। उसमें रैम वगैरह उसको ज़्यादा लगता है डॉटनेट को, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को। जितना ज़्यादा रैम होगा, स्पेस होगा, उतना ज़्यादा वो जल्दी ओपन होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, यस। तो हियर नाउ राइट द फॉर ईच लूप प्रोग्राम। ठीक है, चलो नाउ मुझे एरे क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट एरे? यस, हाउ टू क्रिएट एरे? एरे कैसे क्रिएट करते हैं? चलो जल्दी से बोलो। यस यस यस, मुझे एक एक का नाम लेके बोलना पड़ेगा। चलो बोलो। Variable name. Direct, I want to create Sorry, array. data type. Data type. Data type, yes, data type. Then okay, array Well. name, कोई भी array का नेम मैं ले लेती हूँ। वेरिएबल नेम, हाँ, array वेरिएबल नेम। ठीक है, a ले लिया, इक्वल्स टू न्यू। ओके, देन देखो नीचे ऑटोमेटिकली आ रहा है। ओके, दिस इज ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? हेल्प बॉक्स यू कैन से, पॉपअप बॉक्स यू कैन से। ठीक है, इंटेलिजेंस यू कैन से। ये फैसिलिटी है, फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का। बहुत ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, यस, सॉरी, न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ मुझे इनिशियलाइजेशन करना है। कैसे करूंगी? क्या लिखूंगी अभी? क्या है बताओ सिंटैक्स। चलो, Array का size. एरे का साइज, ओके, देन अभी Semicolon. मुझे इनिशियलाइजेशन करना है। आई वांट टू इनिशियलाइज, मुझे 5 वैल्यू असाइन कर देना है। मुझे 5 वैल्यू असाइन कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करके यू कैन इनिशियलाइज लाइक दिस। ओके, उसका साइज नहीं दोगे तो भी चलेगा, दोगे तो भी चलेगा। इफ यू विल नॉट गिव द साइज, इट विल ऑटोमेटिकली सेट। ओके, जो नंबर पास आपने किया होगा उसके से ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? साइज सेट कर लेगा। ठीक है, देन दे दो वैल्यूज, 5 वैल्यूज दे दो। 5, 45, 30, 12, जो भी आपको देना है। ठीक है, 56 एंड सेमीकोलन, एंड विद द सेमीकोलन, एंड विद द सेमीकोलन। ओके, एरे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, और देयर आर डिफरेंट मतलब वे है कि थ्रू व्हिच वी कैन इनिशियलाइज द एरे। जो हमने कवर किया था एरे, जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तभी मैंने आपको दिखाया था पीपीटी में कि एरे कैसे डिक्लेयर करना है, हाउ टू इनिशियलाइज एरे, एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। तो ये हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। व्हाई इनिशियलाइजेशन? क्योंकि हमने क्या किया, स्टार्टिंग में वी आर असाइनिंग वैल्यूज टू द एरे वेरिएबल्स। ठीक है, हमने एरे वेरिएबल्स जो है, हमने कितना एरे डिक्लेयर किया? 5। ठीक है, 5 डिक्लेयर किया। तो हमने we have assigning 5 values to that 5 variables को हमने वैल्यू पहले से ही दे दिया। पहले से देना मतलब क्या? इनिशियलाइजेशन करके रखना। तो हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है। नाउ I want to print this array elements using for each loop. Okay, for each loop से मुझे उसको print करवाना है। तो कैसे लिखूंगी मैं? क्या लिखना पड़ेगा मुझे? I want to print this array with the for each loop. चलो पहले for loop से करते हैं। Using the for loop, I want to print this array elements. तो for loop से कैसे करेंगे? For loop से कैसे करेंगे? चलो बताओ, for loop से कैसे करोगे? ये स्टूडेंट्स, जेरोल्ड, कीर्ति, अरबाज, मोहित, गणेश, हाँ, सबका नाम लेना पड़ेगा मुझे। For हाँ, int I equals 0. हाँ, for then integer I equals to 0, then I less than a. I less than a क्या लिखूं? A dot length. very good, a dot length. Okay, yes, then I plus plus. sorry, I plus. Okay, and close the bracket. Okay, then enter. अभी क्या लिखना पड़ेगा मुझे? I will write in this brackets. ये क्या हो गया?
array dot बताओ तो खाली बोलो मैम की मिस्टेक हो रहा है। हाँ मैं टाइप कर रही हूँ नाउ टेल मी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट बताओ बोलो कि मैम का मिस्टेक हो रहा है तो यू शुड टेल ना कि मैम यहाँ पे रॉन्ग लिख रहे हो ये बोलना कि मैम बोलने वाला था मैम आप उसके पहले देखिए। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं बताओ अभी नेक्स्ट लाइन व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन console dot write line console dot write line yes console dot write line okay console dot write line yes क्या अभी now AI a of I ठीक है a of I clear now close the bracket and do the semicolon now अभी correct type program should I run this program and console dot read Console. yes very good अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको वेरी गुड इंस्टॉल किया सिस्टम में मैम आपने सेटअप ही नहीं किया है ना नहीं दिया कर ना लिया कर लिया वेरी गुड किसने कर लिया किसने किया यस शोएब Shoaib. ओके गुड गुड वेरी गुड बाकी सारे स्टूडेंट्स इंस्टॉल करो ठीक है यस console dot read line no read line means no error एरर तो नहीं है ठीक है कंपाइल टाइम्स एरर तो नहीं है अभी रन एरर देखते हैं मतलब लॉजिकल एरर देखते हैं कि क्या लॉजिकल राइट लिखा है कि नहीं आई विल चेक आ गया 5 45 30 12 56 यूजिंग द फोर लूप ठीक है नाउ सेम प्रोग्राम ओके सेम प्रोग्राम हमको करना है फॉर ईच लूप से अब क्या करूंगी मैं फॉर ईच लूप से ये पूरा निकाल देती हूँ मैं नाउ फॉर ईच लूप से कैसे करेंगे चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ नाम मुझे स्ट्रिंग फंक्शंस टुडे आई वांट टू कवर स्ट्रिंग फंक्शंस ये बताओ जल्दी फॉर ईच लूप के लिए क्या लिखेंगे आई Watch. हाँ फॉर एक मिनट फॉर ईच ओके ऑटोमेटिकली आ गया फॉर ईच देन देन ओपन द ब्रैकेट हाँ देन क्या करेंगे फॉर ईच का सिंटैक्स क्या था व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर ईच के लिए लिखा नाउ ओपन द ब्रैकेट नाउ अभी डिक्लेयर द डेटा सॉरी राइट द डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप आई शुड राइट हियर Integer. कौन सा लिखना चाहिए मुझे डेटा टाइप Integer. integer okay why because our array is type of integer ऊपर जो array declare किया है उसको that array elements we want to print तो यहाँ पे जो डेटा टाइप हम लोग लिखेंगे it should be match it must be matched with the ऊपर जो array declare किया उसके डेटा टाइप के साथ okay integer declare any variables ठीक है यहाँ पे मैं declare कर देती हूँ item करके आपको जो भी मैंने item लिखा okay now integer item अभी next क्या लिखूं In. in yes then A. a okay now correct है this is correct ना no error no red line मतलब no error okay now अभी I want to print मुझे प्रिंट करवाना है लूप तो हमने चला दिया now प्रिंट के लिए क्या लिखेंगे यस चैट बॉक्स में टाइप करोगे तो आई कैन नॉट रीड इट ओके मैं चैट बॉक्स का रीड नहीं कर सकती तो मुझे इसमें मतलब बार बार वो ओपन करना वो होगा डिस्टर्ब होगा इसलिए आप बोलो console dot write line yes console dot write line स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको एक एक चीज पूछ रही हूँ कि एक बार यू विल गेट द आइडिया तो आप ऑटोमेटिकली बाकी प्रोग्राम जो है ठीक है वो कर पाओगे console dot write line हाँ व्हाट राइट लाइन में क्या लिखूं मैं क्या राइट करवाना है
क्या राइट यूज करोगे? एरे एलिमेंट्स किसमें स्टोर किया है हमने? यस A में हाँ A में ए में नहीं किया है, ए एरे एलिमेंट्स ए में स्टोर किया है, बट फॉर लूप ईच जो हमने किया था, ठीक है, फॉर एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, वो एक्सेस करने के बाद कौन सी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? कौन सी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? आइटम्स में। आइटम। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? आइटम। ओके, हियर वी हैव टू राइट आइटम वेरिएबल नेम। व्हाई? बिकॉज हमने क्या किया, एरे एलिमेंट को एक्सेस किया एंड स्टोर किया इन दी आइटम वेरिएबल में। सो हियर वी हैव टू राइट आइटम वेरिएबल नेम। देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। देन सेमीकोलन। ओके, नाउ कंसोल डॉट, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, यू विल टाइप, आपको टाइप करना है उसको, रीड लाइन एंड सेमीकोलन। ओके, आउटपुट विल बी सेम, जो हमने फॉर लूप से किया उसका एंड फॉर ईच से किया आउटपुट सेम होगा। ओके, डिफरेंस क्या है कि फॉर ईच लूप से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नो रेड लाइन नो एरर। अभी देखते हैं, यहाँ से रन करना है स्टार्ट डीबगिंग, और यू कैन प्रेस F5 भी, आप कीबोर्ड से यू कैन प्रेस, ब्रैकेट में लिखा है देखो, कर्सर लेके जाओगे तो यू सी हियर के F5 फॉर डीबगिंग के लिए आ गया। ओके, तो दिस इज फॉर ईच लूप। ओके, ये फॉर ईच लूप हो गया। ठीक है, एक मिनट, ओके, for each loop हो गया। Now yes, what is the difference between for and for each loop? Okay, limitation of for each loop. What is the limitation of for each loop? For each loops are not appropriate when you want to modify the array. Okay, you should remember this. For each loops are not appropriate when you want to modify the array. अगर आप array को modify करना है तो for each loop appropriate नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे for each integer num in marks only changes number not, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ठीक है, what you will write here, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आपको एक लाइन में याद रखना है, फॉर ईच लूप्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई द एरे। ओके, अगर आप यहाँ पे लिखोगे इंटीजर नम, फॉर एग्जांपल हमने वी आर डिक्लेयरिंग द फॉर ईच लूप इंटीजर नम, इंक्रीमेंट हो रहा है। रिफ्रेश हो रहा है। एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, वेट 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 वेट, ओके आई थिंक हाँ मैंने वो स्टॉप शेयरिंग कर दिया था। ओके ओके सॉरी, ठीक है, वेट। तो दिस इज अ फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप हमने लिखा, सिंटैक्स यू शुड रिमेंबर। नाउ यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप? बट उससे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई द एरे। अगर आपको एरे को मॉडिफाई करना है तो दिस लूप इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज फॉर लूप, तभी आपको फॉर लूप का यूज करना है। ठीक है, ये सी उन्होंने दिखाया, फॉर ईच डिक्लेयर किया है इंटीजर नम इन मार्क्स नाम के एरे में, नंबर वेरिएबल्स उन्होंने उसमें स्टोर करवा रहे हैं, ओनली चेंजेस नंबर। ठीक है, वो नंबर चेंज करेगा, नॉट द एरे एलिमेंट्स को वो चेंज नहीं करेगा। तो व्हेन यू वांट टू चेंज, आपको कुछ चेंज करना है तो नंबर इक्वल्स टू नंबर इनटू 2, तो नंबर में जो होगा लास्ट में वो चेंज होगा, एरे के हर एक एलिमेंट्स जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यू कैन नॉट यूज दिस लूप व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई द एरे। ठीक है, ये भी एग्जांपल उन्होंने बताया कि कैसा है। Then second, for each loop do not keep track of index, so we cannot obtain array index using for each loop. What is the second limitation? क्या है कि for each loop जो है, for each loop do not keep track of index, मतलब वो इंडेक्स जो है एरे इंडेक्स वो नहीं उसको पता है। ठीक है, वो उसका उसको स्टोर नहीं कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन एरे इंडेक्स यूजिंग फॉर ईच लूप। हमको इफ यू वांट टू रिटर्न द एरे इंडेक्स, अगर आपको एरे इंडेक्स रिटर्न करवाना है प्रोग्राम में, तो यू कैन नॉट यूज दिस एरे एट द टाइम, अगेन यू हैव टू यूज फॉर लूप। तब आपको क्या करना है, फॉर लूप ही यूज करना है। सी यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फॉर ईच लूप इंटीजर नंबर इन नंबर्स, इफ नंबर इक्वल्स टू टारगेट रिटर्न, तो क्या रिटर्न करवाएंगे हम लोग? ओके, डू नॉट नो द इंडेक्स, हमको इंडेक्स नहीं पता है। व्हाई? बिकॉज वो डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर रहा है। तो इंडेक्स इफ यू वांट टू एक्सेस, तो उसको आप ये फॉर ईच लूप से नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज फॉर लूप। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट disadvantage limitation? You can say limitation or disadvantage. For each loop only iterates forward over the array in a single step. Okay,
for each loop only iterates forward over the array in single step. Cannot be converted for each loop. For example, आपको ऐसा कुछ करना है माइनस माइनस वगैरह, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन फॉर ईच लूप, वो पॉसिबल नहीं है. अगेन एट दैट टाइम यू हैव टू यूज फॉर लूप, आपको यूज करना है. तो फॉर ईच लूप ओनली इटरेट्स फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड प्लस प्लस ही करता है एरे इन सिंगल स्टेप में, वो भी सिंगल स्टेप में ही करता है, ठीक है. तो लिमिटेशन, ये क्या हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ फॉर ईच लूप. You should remember all this point. Okay, इसके related questions हो सकता है in the MCQ में and Viva में also. ठीक है, तो please note down करके रखो which are the limitation of for each loop. अब आपने देखा how to write program using for each loop से प्रोग्राम कैसे करना है मैंने आपको दिखाया, ठीक है. This is a program, but इसका limitation, all are the limitation. Not up when you want to modify the array, it is not possible using for each loop. For each loop do not keep track of index. Okay, and it iterates only forward not backward. Okay, only and in a single steps में वो करता है, plus 2 3 4 करना है आपको, तो वो आपको नहीं कर सकते using the for each loop. तो आपको वैसे करना है तो for loop यूज करो. तो दिस आर दी डिफरेंस था, सॉरी limitations था. नाउ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन for and for each loop. तो ये जो मैंने दिखाया वो सारे डिफरेंस ही हो गया, बिकॉज ये जो स्टेप्स जो उन्होंने लिमिटेशंस बताए, दैट ये लिमिटेशन वी कैन नॉट डू विद द for each loop के साथ, बट for loop के साथ ये हम लोग कर सकते हैं. तो ये डिफरेंस एज अ डिफरेंस भी आप उसको काउंट कर सकते हो. For loop execute a statement on block of statement until the given condition is false, whereas the for each loop execute a statement on block of statement for each element present in the array, and there is no need to define the minimum or maximum limit. This is a difference. ठीक है, ये डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया उन लोगों ने कि for loop execute a statement or a block of statement until the given condition is false, whereas but for each loop execute a statement or block of statement for each element present in the array, and there is no need to define minimum or maximum limit. हमने define किया for loop, for each loop में minimum maximum कुछ नहीं किया, हमने just declared the variable and array का name लिखा. Okay, तो वो उसका limitation difference है. Second difference क्या है, in for loop we iterate the array in both forward and backward direction. Okay, but in the for each loop we iterate only in the forward direction. ये हमने ऊपर देखा, that is difference. ठीक है, ये second difference हो गया, आपको याद रखना है difference. Okay, इसलिए मैंने पहले आपको प्रोग्राम करवाया कि आपको समझ में आए कि प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे उसमें सिंटैक्स वगैरह यूज होता है. In terms of variable declaration, for each loop have 5 variables declaration, whereas for loop only have 3 variable declaration. Okay, ये भी आपको देखा हम लोगों ने जब प्रोग्राम रन किया कि एरे सॉरी फॉर लूप यूज करें, फॉर ईच करें तो कितना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है. एंड द फॉर ईच लूप कॉपीज द एरे एंड पुट दिस कॉपी इनटू द न्यू एरे फॉर ऑपरेशन, whereas for loop does not do it. Okay, for each loop क्या करता है, copies the array and put in this copy into the new array. Okay, new array में वो क्या करता है, उसमें अपना कॉपी बना के रखता है. तो for loop ऐसे नहीं करता. So that is next new, मतलब एक न्यू उसमें उन्होंने डिफरेंस बताया. तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस डिफरेंसेस फॉर एमसीक्यू एग्जाम एंड वाइवा के लिए. ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया फॉर ईच लूप वो आपको याद रखना है, प्लस सिंटैक्स एक जो हमने स्मॉल प्रोग्राम्स किया, ठीक है, फॉर ईच लूप का, ये आपको पता होना चाहिए. अगर मैं एग्जाम में ऐसे प्रोग्राम आपको दे दूं, अब आपको रीड करना है करेक्ट है कि रॉन्ग है, और नीचे आई विल गिव दी 4 ऑप्शंस मैं आपको दूंगी. रीजॉइन करो स्टूडेंट्स. ओके, प्लीज रीजॉइन करना, रीजॉइन करो. हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस देखना है इसके बाद, यूज रीजॉइन. तो ये सिंटैक्स, ये प्रोग्राम भी आपको पता होना चाहिए, देख के समझ में आना चाहिए करेक्ट है कि रॉन्ग है, क्योंकि मैं आपको प्रोग्राम दूंगी इन द एमसीक्यू में एंड आई विल गिव द 4 ऑप्शंस, आउटपुट उसका दूंगी, तो आपको समझ में आना चाहिए करेक्ट आउटपुट क्या है. कभी कर पाओगे जब खुद से किया होगा प्रैक्टिस तो. ओके, तो ऐसे टाइप्स के एमसीक्यू भी हो सकता है, तो प्लीज बी प्रिपेयर विद ऑल द पॉसिबिलिटी के साथ प्रिपेयर रहना. ओके, यस. So this is the for each loop. Now next is I will send these notes. Okay, Google Classroom में send कर दूंगी, ये सारा notes वगैरह है तो आपको समझ में आ जाएगा. Next जो है that is string.